Hello everyone. So we were discussing about the Indian Council Act 1861. We also discussed earlier that the historical background of India's constitution. Apart from that, we will also cover the Regulating Act and the Charter Act. So things which are seen in the historical background, you need to mention that the four boards were established in the country of India, and there was the Surat, Bombay, Madras and Calcutta. After that, the battles were takes place in India with the Britishers won these battles in like Battle of Plassey and Battle of Buxar. They got the further Diwani rights. Diwani rights are referred to as the revenue collection rights. Further, we move ahead to the discussion of the Regulating Act, in which we are mentioning that the first Governor General of Bengal was been appointed, and that was the Warren Hastings. Okay, in Regulation Act there was the official members, or we can say official Britishers were involving in the corruption, involving the corrupt practices, and became wealthy by taking the present and bribes from Indians. So the British government, so the crown, we also refer to as the crown rule, passed the Regulating Act to stop the corrupt practices for the British officials. Okay, further we discussing about the Charter Act. So Charter Acts was passed at every 20 years, and they will get the monopoly renew after every 20 years. So first Charter Act was passed in the 1793, second Charter Act was passed in 1813, third Charter Act was passed in 1833, and finally the fourth Charter Act was passed in the 1853. So in basically passing the Charter Act, after every 20 years the monopoly has been renewed. Apart from that, the Commander-in-Chief was not initially the member of in the Governor General Council until and unless he was being so appointed. So you need to remember that also. Okay, so basically this is regarding our previous video. Now we move ahead to the discussion of the today's video. So in today's video we were discussing about the Indian Council Act 1861. So as I told you earlier that how the Indian Council Act 1861 is being emerged. So it will emerge on the basis of the after the first war of independence took place in the country of India. So how it will be, so all the acts that were passed after the first war of independence, that is in the 1857, that all acts were referred to as the Indian Act or the Indian Council Act or the Government of India's Act. ठीक है, so we were also discussing about the Government of India Act which will passed in the 1858. Okay, so let's see what are the mentioning in the Indian Council Act 1861. So Central Legislative Council. So you need to remember that the Central Legislative Council is being formed in the Indian Council Act 1861. So what is needed for the mentioning the Central Legislative Council? So Central Legislative Council को यहाँ पे क्यों बनाना जरूरी है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना इसलिए जरूरी है सो दैट द ऑफिशियल मेंबर्स, और वी कैन से दैट द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विच, और we can say that the additional members which took place part in the framing the constitution, which is responsible for framing our constitution or drafted our constitution. ठीक है, or you need to remember that before drafting our constitution we need to frame our constitution assembly, in which the preamble is being formed, where the all acts rules and regulations were written in the preamble. And preamble was nothing but it is all about the brief introduction summary of our India's constitution. ठीक है, तो जैसे कि इंडिया का प्रेम्बल है वैसे भी आप देखेंगे कि वेरियस कंट्रीज़ के भी प्रेम्बल हैं, लेकिन इंडिया के प्रेम्बल में क्या खास है कि इंडिया का जो प्रेम्बल है वो हमारा काफ़ी, हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल प्रेम्बल है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है पास्ट किए गए हैं वो कैसे हैं, लॉवर्स पैराडाइज पे बेस्ड हैं.
ठीक है। लॉवर्स पैराडाइज क्या होता है? लॉवर्स पैराडाइज होता है यानी कि वो जितने भी प्रैक्टिसेस यानी कि जो मेंशनिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बेसिकली लॉवर्स पैराडाइज पे बेस्ड है, यानी कि वो इजीली टू we can say that it is very difficult to understand, but if in case of the apply of the freedom of any religion, or we can say freedom of any individual or section of the society, so it will be very easy being for the implemented, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ द बीइंग preamble is being applied, so we will later discussing about the preamble chapter also, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट। सो इंडियन काउंसिल एक्ट में आपको ध्यान रखना है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई है, जहाँ पर कि आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑफ जो एक्सपांशन है वो गवर्नर जनरल एक्सपांशन का वो हमारा हुआ है। गवर्नर जनरल एक्सपांशन विल टेक्स प्लेस, और वो कैसी है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। सो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। गवर्नर जनरल कैसी है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। सो इट वाज बीइंग एनलार्ज्ड, व्हाई इट वाज बीइंग एनलार्ज्ड? सो इट वाज बीइंग एनलार्ज्ड ड्यू टू दी more and more expansion or involvement of the citizens of the Indians, or we can say the citizens of the Britishers, for which will involved in the council entry for framing, or which is responsible for framing our constitution assembly or drafted our constitution. So this was the main principle behind for the central legislative council being emerged, ठीक है। ओ तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने मेंबर्स हैं, तो एडिशनल मेंबर जिनको हम बेसिकली नॉन ऑफिशियल मेंबर भी कह सकते हैं, ऑफिशियल मेंबर भी कह सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल मेंबर क्या होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या होते हैं। तो एडिशनल मेंबर जो हैं, दीज वर नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12, ठीक है। लॉ मेकिंग पावर, तो we need to emphasize is that the power is at the one centralized council. So as the central legislative council is being formed, so power is take place at the one particular level, ठीक है। power is not divided here. You as you see in the chapter of the, we can say that the fundamental rights, that on the basis of the Gandhian principles. So Gandhian thought was based on that the power is being not centralized, it will be divided, it will goes into the local authority, or it will goes into the hands of the local people or sections of the society also, ठीक है। but here the power has been is at lies in the one centralized council, means that the power is lying at the center, or we can say that the power is lying at the head of the state, ठीक है। that's the meaning here of the law making power. Now second one is the provincial legislative councils. So as I told you earlier that in the provincial legislative council the concept of the element of decentralization is being emerged. अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन तो पहले था यहाँ पे जब गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें तो था पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द वन सेंटर. नाउ एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो बीइंग इमर्ज्ड, तो इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट विल बी द डिवीजन ऑफ द पावर. सो power is being divided at the provinces level, and provinces, or we can say referred to as the presidencies. So presidencies, these are the three presidencies in which the power is being divided, and that one is the Bengal, Northwest Frontier Provinces, and Punjab and Burma. We also discuss as we move ahead in this video. So let's see how will the power is being divided. So power is being divided to the provinces level. The 1861 Act gave provinces presidency legislative power. So process of decentralization began in India. So process of decentralization began in India on the basis of the dividing the power or giving the powers in the hands of the presidencies, and these presidencies are nothing but the Bengal, Northwest Frontier Provinces, and the Punjab and Burma. So Bengal provinces were established in the 1862, while the Northwest Frontier Provinces were being established in the 1866. Punjab and Burma provinces established in the 1867. Okay, so
तो दिस इज रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट, और इंडियन काउंसिल एक्ट में मैंने आपको बता दिया लॉ मेकिंग पावर है। सो बेसिकली जो यहाँ पे पावर है वो लॉ के पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस के पास पावर नहीं है, ये इसका मतलब है लॉ मेकिंग पावर का। ठीक है, आपने देखा था इफ वी डिस्कस अर्लियर दैट द इन वेरियस चार्टर एक्ट्स लाइक इनिशियली द ब्रिटिश वर कम इन इंडिया फॉर द ट्रेड पर्पसेस एंड इन द मेंशनिंग ऑफ द regulating act also that the British government passed the regulating act. So on the basis of the that British were stopped engage in the corrupt practices or the became wealthy, or to stop the taking present and bribe from the Indians. So they want to become too wealthy, want to be able to become wealthy. And the second main principle was that the there lie, so stopped the power that will lies in the hands of the administrative power, executive power and finance power. These all things were discussed in the charter act. So mentioning in the charter act that was the we stopped the power of the administrative power, that will mentioning in the 1853 charter act, that was the fourth charter act. Okay, तो फोर्थ चार्टर एक्ट में क्या मेंशन है, जो हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया है उसमें ये मेंशन है कि ब्रिटिशर्स की जो है वहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी स्टॉप्ड कर दिया गया है। ठीक है, और उनसे जो है हमारी ट्रेड की जो पावर्स थी वो भी पहले ही ले ली गई थी। वो किस में ली गई थी, वो 1813 के चार्टर एक्ट, यानी मीन्स दैट दी इन सेकंड चार्टर एक्ट द ट्रेड policy were being stopped by the British government of the British we can say the officials। और वो क्यों स्टॉप की गई थी, उसमें केवल दो चीज़ें थी जहाँ पे हमारी ट्रेड मोनोपोली को स्टॉप नहीं किया गया था, और वो थी टी एंड दी ओपीएम। सो you need to think about that in the second charter act and the fourth charter act the trade we can say that the financial power or we can say the administrative power were being stopped by the British government, so that the Britishers or we can say that the officials will not be able to engage in the corrupt practices। ठीक है, now as I told earlier that the new legislative council were established in the provinces, and these provinces were Bengal, Northwest provinces and the Punjab and Burma. So Bengal in 1862, Northwest frontier provinces in the 1866, while the Punjab and Burma in the 1867. The principle of non-official representative was accepted in 1861, means that the principle of the non-official representative। अब यहाँ पे आप देखेंगे नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है। नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से मतलब है हमारा यानी कि वो मेंबर जिनकी एंट्री अब काउंसिल के अंदर होने लगी थी, और वो काउंसिल कैसी थी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर की एंट्री होने लगी थी, और वो नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो थे यानी कि नॉन ऑफिशियल वी ऑल्सो रेफर टू एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर, दीज वर द ब्रिटिशर्स नॉट एट इन द टाइम ऑफ द 1860 वर द इंडियन। ठीक है, सो you see that as we move ahead into the discussions of the further council act, the expansion will takes place and the officials entry were being also involved in for the Indians, but in the time of the 1861 the non-official entry was being emerged, and while the 3 Indian were involved in the non-official member in the legislative council। ठीक है, और वो 3 मेंबर किसके द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, वो नॉमिनेट किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, सो लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पे 3 इंडियंस मेंबर को जो है नॉमिनेट किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, और वो कैसे मेंबर थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब आपको बात ये भी ध्यान रखनी है कि नॉन ऑफिशियल जो मेंबर हैं ये इनका इतना कुछ ज़्यादा खास रोल नहीं होता इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करने के लिए, और वी कैन से टू फ्रेमिंग और ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो दीज वर
not be able to conducted an election, or we can say these were not be able to conduct the free voting rights, or these were not be able to conduct election on the basis of the universal adult franchise. ठीक है, we all see that what is the meaning of the universal adult franchise. The meaning of the universal adult franchise is that the anyone who is able to become the 18 years of the age or become older than the 18 years of age will be able to give in vote on the basis of the conducting free and fair election. ठीक है, तो this was the meaning of the universal adult franchises, and where it was being mentioned. So the universal adult franchises was being mentioned in the Nehru report. ठीक है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दी गई थी, और वो 3 इंडियंस जो थे वो थे हमारे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. दीज वर द 3 इंडियंस in which they will get the entry of the legislative council by the Lord Canning as the non-official member. ठीक है, now the viceroy was imposed to issue ordinance during emergency. Its life was 6 months. So what is the meaning of the viceroy here? So viceroy represent the basically the higher authority, or we can say refer to as the supreme power. ठीक है, तो सुप्रीम पावर किसकी? ब्रिटिशर्स की. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स रूल करने आए थे इंडिया के अंदर. और वी कैन से दैट दी as the after the 1857 the crown rule was being started in the crown rule has been started in India. So the viceroy is being reported to the secretary of state. तो वायसरॉय जो है जितनी भी हमारे ट्रेड पर्पसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस हैं, पॉलिटिकल पर्पसेस हैं, लॉ मेकिंग पर्पसेस हैं, एग्जीक्यूटिव पर्पसेस हैं, इनके जो जितने भी फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता था? ये सब जाके रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को. ठीक है, एंड वायसरॉय वाज इज नथिंग बट द सुप्रीम पावर. So Viceroy was empowered to issue ordinance. And ordinance का मतलब क्या है? Ordinance का हमारा मतलब है, मतलब कोई भी पावर जो जैसे कि हमारी वायसरॉय को दी गई है, जैसे कि और आप देखेंगे कि जैसे हमने मान लो 1861 के एक्ट में, और वी कैन से दैट पावर गिवन टू द वायसरॉय ड्यूरिंग एमरजेंसी. सो ये जितनी भी पावर हमें दी गई हैं, तो ये हमारी जो है लेजिस्लेटिव मेंबर जो काउंसिल में हैं, उनसे जो है हम उनसे बिना परमिशन मांगे इस पावर को इनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर जो है ऑर्डिनेंस वायसरॉय के पास ज़्यादा पावर है, और वी कैन से इनर्मस पावर है वायसरॉय के पास. ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ द ऑर्डिनेंस. तो ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस एक हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक ऐसा पावर है जो कि वायसरॉय के पास है, और वायसरॉय कैसा एक सुप्रीम पावर रखता है अपने पास. और यदि उसको कोई इनेक्ट करना हुआ एक्ट के अंदर, कुछ चेंजेस करने हुए एक्ट के अंदर, कुछ इशू करना हुआ ऑर्डिनेंस को, तो वो इशू को ऑर्डिनेंस कर सकता है, यानी चेंजेस ला सकता है. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय द council members. And where it is the council members were sitting in the houses, so council member were sitting in the legislative assembly, or we can say the legislative councils. और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी थी? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की. ठीक है, तो गवर्नर जनरल भी क्या है? वायसरॉय है. ठीक है, तो ये वेरियस नेम है जो कि मेंशन है, जैसे कि गवर्नर जनरल, गवर्नर एंड द वायसरॉय. दीज आर द नेम्स विच आर गिविंग टू एस द which are referred to as the post name. ठीक है, these are not represented by any name of any person. ठीक है, तो आप देखेंगे जैसा कि हमने बात की थी चार्टर एक्ट के अंदर भी, कि जो हमारे गवर्नर जनरल थे पहले बंगाल के, वो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी बने. ठीक है, जिसी को हमने रिप्रेजेंट करके किया था, जिसी को हमने बताया था कि वो जिसको हमने टाइटल दिया था एज दी वायसरॉय. ठीक है, सो दिस इज मेंशनिंग इन दी 1861 एक्ट.
ठीक है। तो 1861 एक्ट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एक्सपांशन हुआ, किस किस का एक्सपांशन हुआ। तो एक्सपांशन से पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर बीइंग फॉर्म्ड इन द 1861 एक्ट। इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स एंड दिस गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज बीइंग expanded, and these will be expanded on the basis of the entry of the official member and the non-official member, while the total addition of the official member and the non-official member was referred to as the additional member, while these were member is not less than 6 and the not more than 12. Law making power is also arise, means that the power is lie in the hands of the judiciary system, or we can say that the law hands, not the administrative power, political power, finance power, executive power। ठीक है। D element of decentralization arises in the provincial legislative council, means that the power is being divided into the local authority also, it is not goes into the hands of the center। That's the meaning of the element of decentralization। Apart from that, there is a concept of the establishing the provinces। Here the provinces referred to as the various states, and these states were the 3 states, and that will refer to as the Bengal, Northwest Frontier provinces, and the Punjab and Burma। So the Bengal provinces were established in the 1862, while the Northwest Frontier provinces were being established in the 1866, and the Punjab and Burma provinces were being established in the 1867। So the main point is about in the Indian Council Act 1861 is about that the expansion of the, or we can say the entry of the Indians were entry of the legislative council, or entry of Indians were took place in the legislative council, that will be nominated by the Lord Canning, and these were the 3 Indians। And who were these 3 Indians? These were the Sir Dingan Rao, Raja of Banaras, and Maharaja of Patiala। So that's the mentioning in the 18th Council Act। Apart from that, the during the emergency provisions, तो आपको ध्यान रखना है जो emergency है, स्टेट के अंदर emergency नहीं लग रही है, ये emergency provisions है। during the emergency provisions, the to issue ordinance, the वायरस was empowered to issue ordinance। ठीक है। तो वायरस के पावर यहाँ वायसरॉय जो है यहाँ पे हमारा सुप्रीम पावर है, उसको पावर है इशू को ऑर्डिनेंस करने की, यानी कि चेंजेस लाने की, एक्ट के अंदर जो है जितने भी चेंजेस हैं उनको कंडक्ट करने की, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडक्ट करने की, ऑर्डिनेंस को इशू करने की उसके पास एनॉर्मस पावर है। और विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मेंबर, वो उस पावर को जो है इनेक्ट कर सकता है। उसका टाइम पीरियड कितना है? इट्स टाइम पीरियड वाज दी 6 मंथ। ठीक है। तो 6 मंथ के लिए वो ऐसा कर सकता है। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है। तो इसमें क्या है ध्यान रखने वाला बात, इसमें इंडिया 18 काउंसिल एक्ट 92 में आपको एक तो ध्यान रखना है कि दिस एक्ट वाज पास्ड आफ्टर दी 31 ईयर्स। ठीक है। So the first act being passed by the Indian Council Act as the 1861, after the 31 years has been passed, the second Indian Council Act was passed in the 1892. So its context is based on the basis of the Indians were dissatisfied with the 1861 acts। So what are the mentioning in the 1861 acts? Indian were dissatisfied। ठीक है। तो इंडियन क्यों डिससेटिस्फाइड थे 1861 के एक्ट से? वो इसलिए सेटिस्फाइड थे, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एंट्री तो दी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल बट वो जो एंट्री थी वो बेसिस थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के बेसिस पे, व्हाइल द इंडियंस वर डिमांडेड द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफिशियल मेंबर। अब यहाँ पे आपको बात ये याद रखनी है कि ऑफिशियल मेंबर क्यों रिस्पॉन्सिबल है हमारा और क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है विद रिगार्ड टू दी, और वी कैन से दैट दी विद रिस्पेक्ट टू दी नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो ऑफिशियल मेंबर इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी काउंसिल के अंदर, ताकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम कर सके, प्रेम्बल के अंदर चेंजेस ला सके और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके। दैट्स वाई द एंट्री ऑफ द ऑफिशियल मेंबर इज बीइंग took place the major role for framing our constitution। ठीक है।
That's why the entry of the official member is being important one. Indians wanted an expanded representative council. Apart from that, the Indians were also expanded the representative council also. तो Indians की डिमांडेड थी कि हमको अब जो है expanded representative council भी चाहिए, ठीक है। तो एक्सपैंडेड रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल से हमारा मतलब है, यानी कि इंडियंस जो है अब चाह रहे थे कि इन 1892 के एक्ट में उनको वोटिंग राइट्स भी मिले, ठीक है, जो इलेक्शन भी कंडक्ट हो, और वो जो इलेक्शन कंडक्ट हो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब कंडक्ट हो सकते हैं? जब इलेक्शन हमारे कंडक्ट हो ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, ठीक है। So Indians were demanded the voting power. Indians were demanding the elections on the basis of the universal adult franchises. That's why they were demanded the separated or the expanded representative councils. This act was important because the university, district boards, municipalities were empowered. ठीक है, the meaning of this act was important. So this act was important because it was important because to conducted and the indirect election also, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर अब जो ब्रिटिशर्स कह रहे थे, जैसे कि इंडियंस डिमांड कर रहे थे कि हमको इलेक्शन कंडक्ट कराने की परमिशन चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के बेस पे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने मान गए थे। ब्रिटिशर्स क्यों मान रहे थे इंडियंस की डिमांड? तो शुरू में तो ब्रिटिशर्स मना कर रहे थे, आप देखेंगे जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ, चार्टर एक्ट में हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने परमिशन को डिनाई कर दिया था इंडियंस की। लेकिन फर्दर एज वी मूव टू द डिस्कशन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट, बिकॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बीन टुक प्लेस, सो ब्रिटिश समझ रहे थे कि यदि हम इनकी डिमांड को अभी पूरा नहीं करेंगे तो आगे चल करके जो है सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस जो है वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे फुलफिल अवर डिमांड, बट दे want to be fulfill our demand on the basis of that's what we are being asked. They fulfill our demand, that's what they need, ठीक है। उनको जो अच्छा लग रहा था वो उसके बिहाफ पे हमारी डिमांड को फुलफिल कर रहे थे। जो हम डिमांड मांग रहे थे उनसे, वो डिमांड वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, ठीक है। दैट्स वाई वी वांटेड टू कंडक्टेड द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाइल दे टॉक्ड अबाउट दे conducted an election and that election was the indirect election, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की यहाँ पे बात की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में हम सोचेंगे। ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, और वी कैन से दैट दी रेफर टू एज द म्यूनिसिपैलिटीज बॉडी, ट्रेड बॉडीज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, कमर्शियल बॉडीज, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी मेंबर्स में प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर डिस्कशन हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर आल्सो टॉक्ड अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द बजट, ठीक है। तो काउंसिल के अंदर क्या होता है? काउंसिल के अंदर क्योंकि इंडियंस चले गए थे 1861 एक्ट के अंदर, बट वो अभी कैसे थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। अगर वो ऑफिशियल मेंबर होते तो वो हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जल्दी रेस्पॉन्सिबल हो रहे होते। हम कह सकते हैं इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी फ्रेम हो जाता, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी फ्रेम क्यों नहीं हुआ। एक तो मेन ये रीज़न है कि इंडियंस की जो एंट्री थी वो हमारी लेट थी काउंसिल के अंदर एज द ऑफिशियल मेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड मेन पॉइंट इज अबाउट दैट द व्हाई इंडियंस वर नॉट बी एबल to drafted our constitution early, and the main point about is that the Indian is a sovereign state at the time during the British rule, ठीक है। तो इंडिया जो है सोवरेन स्टेट था, और सोवरेन स्टेट में क्या होता है? सोवरेन स्टेट में जो है हमारी ट्रांसफर ऑफ पावर दैट हैज बीन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर होती है सोवरेन स्टेट के अंदर, और जबकि जो हमारे सोवरेन स्टेट नहीं होते वहां पे हमारी ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती, वहां पे हमारी फ्रीडम की लड़ाई होती है, ठीक है। फ्रीडम की लड़ाई होती है तो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती। तो दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग फ्रेम्ड अर्ली इन दी वेयर द फ्रीडम फाइट हैज बीन टुक प्लेस, ठीक है।
और हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे जो है रिफॉर्म्स होते थे, ठीक है। आप देखेंगे कि जो गांधी जी के द्वारा रिफॉर्म्स की गए थे, एज लाइक दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट. So these were the movement that will be took place by the Gandhi ji. So that's why our India is a sovereign state at the time of the British rule. ठीक है, that's why our constitution is not being framed early. That's it regarding our context of the Indian Council Act 1892. सो एक्सपांशन देखेंगे यहाँ पे, अब एक्सपांशन यहाँ पे भी हुआ तो, लेकिन एक्सपांशन कैसा था यहाँ पे, एक्सपांशन भी यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि जो हमारे मेंबर्स थे, एडिशनल मेंबर, उसको बढ़ा करके उसकी जो है संख्या बढ़ा दी गई थी, जैसे कि नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 16. सो दीज वर दी एडिशनल मेंबर. और ये जो एडिशनल मेंबर थे, ये हमारी जो एक्सपांशन हुआ था, ये हमारा ऑन द बेसिस था नॉन ऑफिशियल एंट्री, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंट्री के बेसिस पर. ठीक है, तो अभी तक जो है इंडियंस को ऑफिशियल मेंबर्स के बेसिस पे एंट्री नहीं मिली थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर के बेसिस पे ही जो है हमारे इंडियंस वर्क कर रहे थे, और वो जो है सपना देख रहे थे एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने का. ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग इन दी 1892 एक्ट, काउंसिल एक्ट. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें, एक तो मेन पॉइंट है कि 1892 एक्ट का, कि ये 31 ईयर्स के बाद इनेक्ट हुआ था 1861 एक्ट के बाद. सेकंड, इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है कि इंडियन जो है डिससेटिस्फाइड थे विद रिस्पेक्ट टू दी 1861 एक्ट. और वो क्यों डिससेटिस्फाइड थे, वो डिससेटिस्फाइड इसलिए थे क्योंकि जो एंट्री थी इंडियंस की, वो ऑफिशियली एंट्री नहीं थी. ठीक है, इंडियंस की जो अभी एंट्री हो रही थी काउंसिल के अंदर, वेदर इट वाज द लेजिस्लेटिव काउंसिल और इट वाज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, so their entry was based on that they get entry as the non-official member, not the official member, while the official member is being able to introduce the concept or introduce the term of the constitution or drafted the constitution, or we can say that the responsible for framing our constitution assembly. ठीक है, second point is about that they were also discussing on in council, they were discussing on the budget, but they were asked question to the, we can say that were asked the supplementary questions here on the discussion of the budget. तो supplementary question क्या होते हैं, supplementary question वो question होते हैं जैसे कि हमारा कोई question का आंसर आया, इंडियंस ने आंसर दिया, ठीक है, तो इंडियंस ने क्वेश्चन राइज किया ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स ने आंसर दिया, और उसी आंसर पे वो फर्दर क्वेश्चन लिख के भेज देते थे किसके अंदर, जो भी हमारे रूल्स पास होते थे काउंसिल के अंदर. ठीक है, जो भी हमारे एक्ट्स पास होते थे काउंसिल के एंट्री के अंदर, वो काउंसिल कौन सी थी, वो वेदर इट वाज दी लेजिस्लेटिव काउंसिल और बीइंग दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पास करते थे. ठीक है, apart from that, the Indians were not very happy with the Britishers because they were wanted to demanded the voting power and the conducted an election on the basis of the universal adult franchises. ठीक है, so Britishers fulfilled their demand and talked about to conducted and the indirect election. तो you need to remember that they were not will being able to conducted and the direct elections, because if the direct election has been took place by the Britishers, so we as an Indian need to get entry in the official member of the councils. ठीक है, यदि हमको डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराना है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो हमको जो है इंडियंस को जो है अपनी एंट्री लेनी पड़ेगी काउंसिल्स के अंदर. ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन जो कंडक्ट कराने थे, डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट क्यों कराने थे, डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए कंडक्ट कराने थे ताकि जो है हमको फ्रीडम मिल सके अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स. ठीक है, क्योंकि यार आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए ब्रिटिशर्स की परमिशंस जरूरी थी. ठीक है, without being getting permission by the Britishers, we were not able to conducted in the direct election or the indirect elections, because the
crown rule, or we can say that the crown rule has been took place in India. किसी भी यदि कंट्री में कोई भी रूल होता है तो वहाँ पे हमको जो है परमिशंस लेनी पड़ती है इलेक्शन कंडक्ट करवाने की उस कंट्री से जो कि रूल कर रही है, ठीक है। तो हमारे लीडर्स जो है परमिशंस ले रहे थे ब्रिटिशर्स से इलेक्शन को कंडक्ट कराने की, लेकिन अभी तक जो है आप देखेंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ था, और डायरेक्ट तो छोड़ो, अभी तक जो है हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं हुआ था 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट तक, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट। नाउ वी मूव हेड टू द डिस्कशन ऑफ द 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, that is also referred to as the Morley Minto reform। अब जो यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी है हमारा, जो कि हमारा मेंशन है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर। सो द फर्स्ट बीइंग पार्ट ऑफ द मॉर्लेस बीइंग रेफर्ड टू एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द व्हाइल बीइंग द मिंटो रेफर्ड टू एज द वायसरॉय। वायसरॉय आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इट वाज द सुप्रीम पावर, और वी कैन से द हायर अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और ये जो सुप्रीम पावर है ये क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता था, ये रिस्पॉन्सिबल होता था चेक करने के लिए जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, उनकी ट्रेड पावर को, और वी कैन से द फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर, जुडिशरी पावर, ठीक है। इनकी पावर को चेक करने के लिए, इनके फंक्शंस को चेक करने के लिए, इनकी पावर को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए एक वायसरॉय जो है रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। वेयर इन द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मिंटो वाज द वायसरॉय एंड द मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन द Government of India Act 1909, this was also the main principle, or we can say that the main point here of the Government of India Act 1909 is about that the separate electorate, introduction of the separate electorate। So separate electorate का भी term यहाँ पे introduce हुआ था। अब separate electorate क्या होता है? separate electorate होता है कि every citizens of the country of India, जितने भी हमारे citizens हैं इंडिया के अंदर, वो whether it was the Muslims, सिक्स, पंजाबीज, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, क्रिश्चियंस, ठीक है, जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के अंदर, उनको जो है सेपरेट पावर दी गई थी इलेक्शन को कंडक्ट कराने की और उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की। ये मेंशन है सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर। For Central Legislative Council, the maximum number of the additional of member was increased from 16 to 60, ठीक है। तो एक पॉइंट, मेजर पॉइंट ये भी आता है कि यहाँ पे हमारा एक्सपांशन हुआ एडिशनल मेंबर्स का, और वो जो एक्सपांशन है वो आप देखेंगे कि 16 से 60 तक हो गया था, ठीक है। तो जबकि हमारा इंडियन, हमने बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो हमारा एडिशनल मेंबर था वो था हमारा अप टू दी 12 मेंबर। फॉर द फर्दर दे विल इंक्रीज टू दी इन 1892 till the 16 member, and in the 1909 they will increase to the 60 member as the additional member। और additional member क्या होते हैं? additional member होते हैं हमारे official member and the non official members। the members were giving the right to ask supplementary question on budget, ठीक है। so members को right दिया गया था क्वेश्चन को आस्क करने का ऑन द बेसिस ऑफ द बजट। तो बजट के बेसिस पे जो है क्वेश्चन को आस्क करने का मेंबर को राइट ही दिया गया था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होता है इंडियन वर डिमांडेड टू रिजॉल्विंग द इंडियन वर डिमांडेड टू resolve the issue that was generated by the local levels or local authority of the Indian country, ठीक है। तो लोकल्स के पास जितने भी इशू थे वो दिए जाते थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को इसलिए दिए जाते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पीरियड पे रूल कर रहा था इंडिया के अंदर और क्राउन रूल हमारा था। तो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग गिवन टू द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स गिविंग द आंसर्स। व्हाइल गिविंग द आंसर्स दे विल आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मीन्स दैट दे विल बी आस्किंग अगेन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ to get the to further explain the answers on the basis of the budget, और this will regarding on the budget also, ठीक है। तो केवल बजट के लिए हमारा प्रिंसिपल लाई करता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का। वेदर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द trade purposes or the financial purposes, executive purposes, political purposes, administrative purposes, these were not the lies to ask the supplementary questions. The supplementary questions were being asked only to the budget
So this is regarding in the mentioning, or we can say that the mentioning in the Government of India Act 1909. Apart from that, the indirect election was introduced. Now the term of the indirect election was introduced in the एक्ट ऑफ द 1909. तो ठीक है, आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कब हुई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी कंडक्ट कराने की हमारी 1892 के एक्ट में. तो 1892 के एक्ट में ब्रिटिशर्स ने वादा किया था कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगे. और इनडायरेक्ट इलेक्शन आप देखेंगे क्यों जरूरी था कंडक्ट कराना, ताकि जो हमारे इंडियंस हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म्ड कर सकें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सकें, अपना खुद का एक प्रेम्बल बना सके, जिसके अंदर हम देखेंगे कि खुद के एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल्स वो लिख सकें. दैट्स व्हाई वी नीड टू frame our, or we can say that the responsible for drafted our constitution was necessary to conducted and the indirect elections. और आप देखोगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ. तब इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ हमारा कि लोकल बॉडीज जो थी वो हमारी जाके किसके पास ऑथराइज्ड होती, किसको एडमिनिस्ट्रेटिव करती थी, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव करती थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मेंबर्स. और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर मैंने आपको बता ही दिया. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर क्या होता है. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर के अंदर हमारे एडिशनल मेंबर होते हैं, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं और ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं. इनकी संख्या भी मैंने आपको बता दी कि शुरू के इंडियन 861 एक्ट की रेफरेंस में यदि मैं बात करूं जा करके, तो इसकी मेंबर थी 12 मेंबर, नॉट लेस देन 6, नॉट मोर देन 12, which will further be expanded and goes to the 16 member. Apart from that, to the 16 member, it will increased in the 1909 to the 60 member, from 16 to 60. तो यहाँ पे हमारी जो है मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया था. अपार्ट फ्रॉम दैट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर भी हमारी इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हमारी टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी टर्म हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी. सेपरेट इलेक्टोरेट की मैंने बात आपसे करी दी. और सेपरेट इलेक्टोरेट किसको किया था आप देख सकते हैं, इसमें मेंशन है कि मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट वेयर ओनली मुस्लिम कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट एंड ओनली मुस्लिम वोटर्स कैन वोट. सो मुस्लिम्स को हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, जिसमें बात की गई थी कि मुस्लिम जो हैं हमारे वो केवल मुस्लिम वोटर्स को ही वोट, मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो हमारे केवल मुस्लिम इलेक्टेड मेंबर को ही चूज कर सकते हैं और उसको ही वोट कर सकते हैं. दैट इज द मेंशनिंग इन द सेपरेट इलेक्टोरेट. गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट वन इंडियन मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है, तो दिस वाज द मेजर पॉइंट दैट हैज बीन इमर्ज्ड इन द 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, और वी कैन से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. इसमें क्या था कि इंडियन मेंबर की जो है अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री हो गई थी. और वो कौन सा मेंबर था इंडियन उस टाइम पीरियड पे, एंड दैट वाज दी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी अपॉइंटेड इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है हमारे फर्स्ट इंडियन मेंबर बने थे, जो कि अपॉइंट किए गए थे. वायसराय आप समझ गए होंगे अब तक. वायसराय जो है हमारा सुप्रीम पावर को रिप्रेजेंट करता है और हायर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. द मेंबर वर आल्सो गिवन पावर्स टू वोट ऑन दी सम पार्ट्स ऑफ द बजट. तो बजट का डिस्कशन पे भी मैंने आपसे बात कर ली है. तो बजट, तो ये जो मेंबर था, इंडियन मेंबर था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये इसको अब पावर थी और वोट कर सके और डिस्कस कर सके बजट पे, अल्टरेशन इन टैक्सेस और डिमांडिंग एडिशनल ग्रांट्स फॉर लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो टैक्सेस पे जो हमारा बात कर सकता है और बजट पे हमारा बात कर सकता है. जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस को दिए जा रहे थे, उन पे डिस्कशन जो है हमारे अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि फर्स्ट इंडियन मेंबर थे और अपॉइंट किए गए थे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो अब डिस्कशन कर सकते हैं. 2 इंडियंस वर आल्सो नॉमिनेटेड इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. तो एक तो होता है, आप वायसराय समझ गए, वायसराय कौन होता है, सुप्रीम पावर, हायर अथॉरिटी ऑफ द. और हायर अथॉरिटी कैसे बनता है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और द वायसराय.
तो गवर्नर जनरल, जैसे हमने बात की थी कि हमारे रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में भी मेंशन था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही हमारा गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बना था, ठीक है। तो वो जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बना था उसी को हम रेफर कर रहे थे एज दी वायसरॉय से, और वायसरॉय जो है देयर इज अ वायसरॉय रिपोर्ट करता था जाकर के किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो ये टू इंडियंस भी नॉमिनेटेड हुए थे काउंसिल एंट्री में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। सो वी कैन से दैट द ब्रिटिश वर स्टिल नॉट नीड टू ग्रांट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडियंस, ठीक है। तो 1909 के आने तक भी ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था कि हम अभी भी इंडियंस की डिमांड्स को फुलफिल नहीं करें, इनको अभी भी राइट्स नहीं दिए। और वो क्यों नहीं देना चाह रहे थे राइट्स, वो राइट्स इसलिए नहीं देना चाह रहे थे बिकॉज दे थॉट दैट इंडियन वर स्टिल नॉट बी एबल टू गेट द independence. That's why they won't need to frame their constitution early, ठीक है। तो this is regarding this point. Apart from that, they also wanted to rule the country by application to divide and rule principle, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा, जो कि हमारा रेस्पॉन्सिबल था फ्रेम करने के लिए डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल को। तो ब्रिटिशर्स रूल करते थे डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है। तो ये मेंशनिंग है हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर। 1909 Act was the beginning of the communal representation in India, which logically lead to the partition of the country. तो the major ड्रॉबैक और वी कैन से दी यहाँ पे हमारे ब्रिटिशर सफल हुए थे इस एक्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो हमारा इस एक्ट को पास करने से उन्होंने इंडिया का पार्टीशन कर दिया था, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने दे दिया गया था मुस्लिम वोटर्स को। दैट्स वाई द इंडिया का पार्टीशंस भी हुआ हमारा। दैट्स वाई द मेन रीजन द इंडिया इज बीइंग partition has been takes place in the country of the India by introducing the term of the separate electorate. लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो यहाँ पे जो लॉर्ड मिंटो है उसको हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें आप समझ गए, एक तो इसमें बात याद रखनी है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्सपांशन भी हुए थे हमारे, एक्सपांशन को जो है मेंबर्स को इंक्रीज करके 60 मेंबर कर दिया गया था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते थे बजट पे हम, ठीक है। मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस हुए थे उस टाइम पीरियड पे। जो फर्स्ट हमारा इंडियन मेंबर था दैट वाज दी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी अपॉइंटेड इन दी वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एंड विच दिस एक्ट वाज रेस्पॉन्सिबल लीड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। So this is mentioning in the Act of the 1909, which is also referred to as the Morley-Minto reform. Now we move ahead to the discussion of the Government of India Act 1919. ठीक है, तो 1919 के एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या मेंशन है आइए देख लेते हैं। अब इसमें बात निकल करके आती है डायरकी। तो डायरकी क्या होती है, मैंने आपको शुरू की वीडियो में भी बताया था, जब मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उसमें एक टर्म आई थी, एक तो थी डबल पावर, एक तो थी डुअल गवर्नमेंट, और एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी मैंने डायरकी। तो डायरकी होती है हमारी डबल रूल। अब डबल रूल कैसे होता है, तो डबल रूल ऐसे होता है कि कुछ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। जो हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं गवर्नर प्लस मिनिस्टर से, जिसको हम रेफर करते हैं इस दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। और जो हमारे रिजर्व सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मैंने आपको बता दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों मेजर रोल प्ले करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंशनिंग है कि लॉ जो है वो हमारा सबसे सर्वोपरि है, हम कह सकते हैं लॉ वाज दी सुप्रीम पावर, ठीक है, लॉ इज सुपीरियर। और आप आगे चल के भी पढ़ेंगे, जैसे हम फर्दर वीडियो में डिस्कशन करेंगे और फर्दर वीडियोस बना रहे होंगे, उसमें लिखा है कि रूल इज लॉ और द रेक इज लॉ, यानी कि लॉ इज किंग एंड द किंग इज लॉ,
ठीक है, दिस इज मेंशनिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप समझ गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स की एंट्री होती है जो कि डिस्कस करते हैं कि जुडिशरी सिस्टम हमारा कैसे कंडक्ट होना है। ठीक है, जुडिशरी की सिस्टम के अंदर। और मैंने आपको बताया भी था कि क्योंकि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो यदि हम जुडिशरी रिव्यू सिस्टम की बात करें तो जुडिशरी रिव्यू सिस्टम लिया गया था हमारा यूएसए गवर्नमेंट, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जुडिशरी रिव्यू सिस्टम मेंशन है, जो कि हमारा बात करता है कि यदि हमारे किसी भी एक्ट के अंदर इशू अराइज हो रहा है, ठीक है, तो यानी किसी भी एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करना है, कुछ आर्टिकल के अंदर चेंजेस करना है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट अप्लाइड होने हैं, तो वहाँ पे हमारा जुडिशरी सिस्टम पहले रिव्यू करेगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करेगा। दैट्स मेंशनिंग इन द जुडिशरी रिव्यू सिस्टम। ठीक है, द एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड दी बाइकैमरलिज्म। अब ये बाइकैमरलिज्म क्या होता है? बाइकैमरलिज्म होता है मीन्स दैट दी बोथ हाउसेज वर इन्वॉल्व्ड। अब वो बोथ हाउसेज कौन से हो सकते हैं? नाउडेज द बोथ हाउसेज आर रेफर टू एज द राज्यसभा एंड द लोकसभा, बट एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स इन द टाइम पीरियड, और वी रेफर टू एज इन द टाइम पीरियड ऑफ द 1990s वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैज बीन पास्ड। तो उस टाइम पीरियड पे कौन से थे हमारे? उस टाइम पीरियड पे थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम कहते हैं अपर हाउस, टुडे nowadays we are called as the राज्य सभा, while this legislative assembly को हम कहते हैं लोअर हाउस, मीन्स द पीपल्स हाउस। Majority of the members for both the houses were chosen by the direct elections। अब यहाँ पे आप देखोगे कि टर्म जो है डायरेक्ट इलेक्शन की इंट्रोड्यूस हो गई है। तो हमारी बात हुई थी कि 1892 के एक्ट में कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात इंट्रोड्यूस किया गया था टर्म को, लेकिन अप्लाइड नहीं हुई थी, जो कि अप्लाइड हुई थी हमारी जाकर के 1909 के एक्ट में। अब यहाँ पे जो है हमारी डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई है। डायरेक्ट इलेक्शन की बात क्यों रेस्पॉन्सिबल है? डायरेक्ट इलेक्शन की बात हमारी मेजरली रोल इसलिए प्ले करती है ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें। अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा जब हमारे इंडियंस को ऑफिशियल्स एंट्री मिले, किसके अंदर? काउंसिल्स के अंदर। और वो काउंसिल्स कैसी हो सकती हैं? वो काउंसिल हमारी लेजिस्लेटिव भी हो सकती हैं और एग्जीक्यूटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यदि हमारी इंडियंस को काउंसिल्स के अंदर एंट्री मिलेगी तो वहाँ पे हमारे डायरेक्ट इलेक्शन टुक्स प्लेस होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन टुक्स प्लेस होंगे, और वो जो डायरेक्ट इलेक्शंस है वो हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। एंड दीज इलेक्शन वर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, I told you earlier that the meaning of the universal adult franchises was that the everyone who is become the adult one will eligible to give their votes, will have freedom to give their voting rights, will eligible to give their vote to choose the elected representative member। ठीक है, that's mentioning in the direct election। Limited franchise was granted to limited number of people on the basis of tax, property and education। तो यहाँ पे हमारी लिमिटेड फ्रेंचाइजेस जो है वो हमारी ग्रांट की गई थी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए, यानी कुछ ये जो डायरेक्ट इलेक्शन की कंडक्शन थी, यानी डायरेक्ट इलेक्शन जो हो रहा था यहाँ पे हमारा कुछ पर्टिकुलर पीपल के हैंड्स में ही पावर थी उस डायरेक्ट इलेक्शन को कंडक्ट कराने की। ठीक है, और वो हमारा डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट हो सकता था ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्सेस, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन भी हमारा मेन रोल इसलिए प्ले करता है, जैसे कि मैंने आपको एजुकेशन के बारे में एक प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि जो हमारा एक्ट था बेसिकली द रेगुलेटिंग एक्ट, उस टाइम पीरियड में आप देखोगे जाकर के कि तो ये ब्रिटिशर्स ने जो है 1 लाख रुपये जो है एवरी इंडियंस के सिटीजन्स ऑफ इंडियंस की एजुकेशन पे जो है खर्च करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो है वो इंडियंस को इन्वॉल्व करा सकें अपने काम के अंदर, और हम कह सकते हैं ताकि वो जो है इंडियंस को जो है इशू करा सकें, इन्वॉल्वमेंट करा सकें उनके खुद को काम करवाने के लिए, जो कि हमारे लोकल काम होते हैं, यानी कि स्मॉल वर्क जो होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे क्लरिकल पोस्ट हैं, क्लरिकल जो पोस्ट है वहाँ उन क्लरिकल पोस्ट को वर्क कराने के लिए इंडियंस को हमारे एजुकेटेड किया जा रहा था। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड इन लंदन। ठीक है,
तो हाई कमिश्नर का ऑफिस भी इंडियन लंदन में क्रिएट किया गया था. सो सम फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज ट्रांसफर टू द ऑफिस. तो इसका दैट्स द मीनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशिंग द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इज वाज टू दैट द डिवाइड द वर्क. और वर्क कैसे डिवाइड हो सकता है? वर्क डिवाइड हो सकता है जब हम एक पावर, यानी कि पावर जो है वो हमारी एक हैंड के अंदर नहीं हो, वो उसको हम पावर को डिवाइड कर सकें. यदि पावर हमारी डिवाइड हो जाएगी तो वहाँ पे हम जो है और वो पावर डिवाइड हुई थी हाई कमिश्नर को. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जो हमारा पहले बर्डन था वर्क का, वो हमारा डिवाइड हो करके हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास हो गया था. और जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो हमारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था लंदन के अंदर. It also provided for the appointment of the Statutory Commission to report on the working of the Act after 10 years. ठीक है, तो ये जो हमारे लॉज पास होते थे, एक्ट्स पास होते थे, ये हमारे जो है इनेक्ट किए जाते थे और हम कह सकते हैं ये हमारे जो है बेसिकली रिन्यू किए जाते थे एट एवरी 10 years. और ये क्यों रिन्यू किए जाते थे? द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड फॉर रिव्यू द एक्ट और द लॉ आफ्टर एवरी 10 years इज टू एंश्योर दैट वेयर द इशूज दैट वर इमर्जिंग टू रिजॉल्व द इशू एंड गिव द बेटर सॉल्यूशन ऑफ द इंडियंस. ठीक है, तो इंडियंस को ताकि सॉल्यूशन मिल सके. इंडियंस जो हैं डिमांड कर रहे थे कि हमें को जो है वोटिंग राइट्स चाहिए, इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, ठीक है, फ्रीडम चाहिए. तो जितने भी इशू आ रहे थे इंडियंस के द्वारा ब्रिटिशर्स को मिल रहे थे, वो उस इशू को सुने और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें. तो दैट्स वाई दी जितने भी एक्ट्स पास होते थे, लॉज पास होते थे, वो हमारे रिव्यू किए जाते थे एट आफ्टर एवरी 10 years. Provincial budget were separated from central budget and provincial legislative were authorized to the enact their budget. तो provincial budget जो है वो हमारा सेपरेट था सेंट्रल बजट से. ठीक है, तो प्रोविंशियल बजट हमारा डिस्कस करता था, सेंट्रल बजट से सेपरेटेड था. यानी कि सेंट्रल बजट में क्या थी, जितनी भी पावर्स थी वो हमारी लाइज थी सारी सेंटर के अंदर. और प्रोविंशियल बजट के अंदर कुछ पावर हमारी स्टेट को भी दी गई थी. मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर आर आल्सो गिवन टू दी were established, or we can say the comes under the provincial budget also. Provincial legislature were authorized to enact their budget. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो ऑथराइज था बजट को इनेक्ट करने के लिए. सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, यूरोपियन वर आल्सो गिवन टू दी सेपरेट इलेक्टोरेट. तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सिख को भी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, यूरोपियन, इनको भी जो है परमिशन दी गई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का टर्म इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट इनको भी दे दिया गया था. तो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था स्टार्टिंग में मुस्लिम को इन दी 1909 रिफॉर्म, मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म. अब यहाँ पे जो है 1919 एक्ट के अंदर जो है हमारा फाइनली सिख को भी दे गया था. एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन और यूरोपियन इनको भी जो है परमिशन ग्रांटेड कर दी गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की. We can say that although concept of responsible government was introduced, but it fell much short of demands made by the nationalist. ठीक है, अब देख लेते हैं backdrop of the 1935 Act. तो 19 we can say that the incident that will take place before implementing the Act of the 1935. ठीक है, तो 1935 के एक्ट से पहले क्या क्या इंसिडेंट्स हुए उसको देख लेते हैं. 1927 नवंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए 7-member कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन. ठीक है, तो अब जो है हमारे जॉन साइमन आ गए हैं. जॉन साइमन जो है वो हमारे इंडिया आ गए हैं और उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था 7th-member कमीशन को. और ये कब इंट्रोड्यूस किया था? 7th-member कमीशन इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी 1927 के अंदर, नवंबर के अंदर, जिसको हम साइमन कमीशन से भी रेफर करते हैं. इंडियन नेशनलिस्ट अपोज्ड इट बिकॉज इट वाज एन ऑल इन ब्रिटिश कमीशन. ठीक है, तो इंडियन नेशनलिस्ट ने इसको अपोज किया था क्योंकि ये जो है हमारी ऑल ब्रिटिश कमीशन पे बेस्ड थी. रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन क्या था? अबॉलिश डायरकी. डायरकी आप समझ गए, डायरकी क्या होती है? मींस द ट्रांसफर ऑफ द सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट, और वी कैन से द डबल रूल. जो डबल रूल हमारे इंडिया के अंदर था, और हम कह सकते हैं डुअल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो चल रही थी, उसको जो है अबॉलिश करने के लिए जो है हमारा रिकमेंडेशन था साइमन कमीशन का. एस्टेब्लिश अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, तो फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था
प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। तो आप देखेंगे फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन होता है हमारा बेसिकली दैट द डिवीजन ऑफ द पावर। ऑफ डिवीजन ऑफ पावर कैसी होती है, मींस दैट वी डिवाइड द डिविजन्स ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ द divisions of power took place and given to the rights of the higher authority to the local authority। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो डिवीजन और हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में भी, नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि जो पावर्स है वो डिवाइड होती है हमारी 5 लेवल्स पे। यानी कि वो हमारी सबसे पहले जाती है टू दी, यदि हमको पावर को लोकल से और हाई अथॉरिटी तक भेजना है तो वो हमारी जाती है विलेज, देन ताल्लुक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, तो ऐसे हमारी पावर फ्लो होती है। और बट हमारी पावर फ्लो होनी चाहिए लोकल लेवल टू दी हायर लेवल से, बट हमारी पावर फ्लो होती है हायर लेवल टू दी लोअर लेवल। और आप देखेंगे कि हायर लेवल से चलती है और वो हमारी पावर विलेज तक पहुंचती नहीं है। बट हमारा जो गांधीयन प्रिंसिपल था, गांधीयन मॉडल जो था, हम पढ़ेंगे इन द फंडामेंटल्स डीपीएसपी के अंदर, मींस दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो उसके अंदर मेंशन है गांधीयन मॉडल कि हमारी जो पावर है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए लोकल लेवल टू दी हायर लेवल। बट हमारी जो पावर है वो हमारी फ्लो होती है हायर लेवल टू दी लोकल लेवल, मींस दैट पावर इज लाई एट दी हायर अथॉरिटी। और हायर अथॉरिटी कौन सा है यहाँ पे, हमारा हायर अथॉरिटी है हमारा दैट इज दी सेंटर। तो सबसे ज्यादा पावर होती है हमारी सेंटर के पास, फिर हमारी पावर होती है स्टेट के पास, फिर पावर होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट के पास, फिर पावर आती है हमारी ताल्लुक दैट इज दी तहसील, और फिर हमारी पावर आती है विलेज के पास। तो ऐसे हमारी पावर फ्लो करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो आप देखेंगे जो ये हमारा है हमारा 1919 यानी कि बैकड्रॉप जो है 1935 एक्ट का, इसके अंदर भी हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है इसको कंटिन्यूएशन किया गया था। ठीक है, एक्सटेंडिंग रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। Apart from that, the table councils has also took place in the backdrop of the 1935 Act। अब ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए गए थे। अब कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए गए थे, सो बेसिकली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि वो ठीक है, और वो मेन प्रिंसिपल था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को करवाने का, वो ये था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस के जो इशू आ रहे हैं उसको रिजॉल्व कर सकें और प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। दैट्स व्हाई दे कंडक्टेड दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये कब कब हुई, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हमारी 1930 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हमारी 1932 में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रिंसली स्टेट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इनके अंदर कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे 3 रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटेटिव एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमारे 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। और मेन प्रिंसिपल था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराने का, ताकि जो है ब्रिटिशर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। दैट वाज द बैकड्रॉप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द बैकड्रॉप ऑफ 1935 एक्ट। तो क्या क्या है बैकड्रॉप ऑफ 1935 एक्ट में, एक तो है साइमन कमीशन, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ डायआर्की, मींस दैट द डबल पावर हैज बीन एबॉलिश्ड। ठीक है, जो डबल पावर थी, हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, रिजर्व सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो रहे थे हमारे गवर्नमेंट गवर्नर प्लस मिनिस्टर से, वाइल द रिजर्व सब्जेक्ट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हो रहे थे गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, उनको अबॉलिश करना, डबल पावर को एस्टेब्लिश करना। तो द टर्म डायआर्की हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड।
Apart from that, we were also established the Federation of British India plus Princely States. फेडरेशन की टर्म भी यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस की थी। और फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन होता है हमारा, या फिर फेडरेशन और फेडरलिज्म टर्म होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर्स नॉट लाई एट दी वन हैंड, इट विल गोज टू द लोकल पीपल और लोकल अथॉरिटी ऑफ द इंडियंस ऑल्सो। ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया फेडरेशन के अंदर, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट आएंगे। ब्रिटिश इंडिया क्या होते हैं? ब्रिटिश स्टेट्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो स्टेट्स जो ब्रिटिशर्स के अंदर कंट्रोल हैं वो स्टेट्स भी आएंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी आएंगे। उसके बाद हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई बैकड्रॉप ऑफ 1935 एक्ट के अंदर, और इनका मेन मोटिव था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराने का, ताकि जो है इंडियंस के जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वो उनको सुन सके ब्रिटिशर्स और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट एस्टेब्लिश्ड ऑन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये हमारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन मैंने आपको बता ही दिया, डिवीजन ऑफ पावर है किस किस में? ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। दिस एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स, तो यूनिट्स होता है हमारा स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये डिवीजन ऑफ पावर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और किस किस में डिवीजन ऑफ पावर होती है? यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे डिवीजन ऑफ पावर होती है? यानी कि यहाँ पे हमको यदि डिवीजन ऑफ पावर करवानी है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो हमको 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। और वो 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? पहली लिस्ट है फेडरल लिस्ट, सेकंड लिस्ट इज द प्रोविंशियल लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट इज द कंकरेंट लिस्ट। यानी फेडरल लिस्ट जो सेंटर के लिए और हम कह सकते हैं सेंट्रल के लिए है, उसके अंदर 59 आइटम्स है। means that the 59 subjects were involved in the constitution in the federal list of for center, while the 54 subjects were involved in the constitution for the provincial list, while the concurrent list both means that the center at the state। और यहाँ पे जो है सबसे कम आइटम्स हैं, और वो कितने आइटम्स हैं? 36 आइटम, यानी कि 36 सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो फेडरल लिस्ट है सेंटर के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट है स्टेट के लिए, और कंकरेंट लिस्ट है दोनों के लिए। मीन्स दैट द सेंटर एंड द स्टेट्स। रेजिडुअली पावर वर गिवन टू द वायसराय, ठीक है। तो रेजिडुअरी पावर क्या होती है? रेजिडुअरी पावर होती है जो भी पावर्स हमने, जैसे कि हमने कोई एक्ट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो मेंशन एक्ट, तो यदि उसके पास पावर है जैसे कि फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन है, इक्वलिटी ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, ये जितने भी आर्टिकल्स के पास पावर है, ठीक है। तो इनकी जो रेजिडुअरी पावर होगी यानी कि रिमेनिंग पावर जो होगी वो उस टाइम पीरियड पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे वो किसके हाथ में थी? वो हाथ में इन दी हैंड वर गिवन इन दी हैंड्स ऑफ द वायसरॉय, और वायसरॉय था सुप्रीम पावर, ठीक है, ठीक है। वायसरॉय इज आल्सो रेफर टू एज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो है हमारी वायसरॉय के पास पावर थी रेजिडुअरी पावर। इन नाउ डेज द रेजिडुअरी पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज के समय में हम देखेंगे कि रेजिडुअरी पावर किसके पास है? तो आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेजिडुअरी पावर है हमारी। The federation never came into being because the princely state did not join it। तो ये जो फेडरेशन था ये हमारा अप्लाइड होने के लिए कभी नहीं आया, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं इसका जो एप्लीकेशन है फेडरेशन का वो हमारा नहीं हुआ। वो हमारा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, फेडरेशन को। और फेडरेशन क्या होता है? तो क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। फेडरेशन होती है हमारी डिविजन्स ऑफ पावर। डिविजन्स ऑफ पावर होती है हमारी 5 लेवल्स पे। इट अबॉलिशेस डायरार्की इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो डायरार्की को इसने अबॉलिश किया 1935 के एक्ट को। मींस दैट दी डबल पावर जो थी हमारी वो हमारी कैसी हुई? अबॉलिश्ड हुई जा करके किस एक्ट के अंदर? 1935 के अंदर।
तो हम देखेंगे कि डबल पावर हमारी इंट्रोड्यूस कब हुई, तो डबल पावर हमारी इंट्रोड्यूस हुई 1919 के अंदर, यानी कि जब हमारे बाईकैमरलिज्म टर्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वहाँ पे हमारे डबल पावर इंट्रोड्यूस्ड हुई प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। तो और वो प्रोविंस, ठीक है, तो डबल पावर इंट्रोड्यूस्ड हुई जहाँ पे कि हमारे डबल पावर के अंदर डिविजन्स ऑफ पावर हुई, डिविजन्स ऑफ पावर हुई ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड द रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसफर पावर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर प्लस मिनिस्टर, वाइल द रिजर्व सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ठीक है। सो हेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट एस्टेब्लिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस, मीन्स एट द स्टेट्स द डबल पावर इज बीइंग abolished and introduced provincial autonomy. It also introduced bicameralism 6 out of 11 provinces, ठीक है। तो bicameralism were also introduced in the 1919 Act, ठीक है, which it talks about the both houses, that means the center of states and the legislative assembly, while the central of states were referred to as the upper house or the Rajya Sabha nowadays, while the legislative assembly was being referred to as the lower house or the people's house or the Lok Sabha, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यहाँ पे जो है हमारी जो है डायरकी वो हमारी एबॉलिश्ड की गई थी। अराउंड 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स। तो आप देखेंगे हमारे शुरू में क्या हो रहा था, जब एक्ट्स हमारे पास हो रहे थे, इनिशियली जो हमारे एक्ट्स पास हुए थे फ्रॉम आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया टुक प्लेस, जैसे कि हमारे क्राउन रूल आया इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या था कि हमारे काउंसिल के अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी इंडियंस को। फिर हमारे काउंसिल की एंट्री मिली 1861 एक्ट के अंदर, वो एंट्री है मिली हमारी एज दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, और वो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे वो थे हमारे सर दिनकन राव, महाराजा ऑफ पटियाला एंड राजा ऑफ बनारस, ठीक है। उसके बाद हमारी एंट्री मिलने के बाद हम देखेंगे ऑफिशियल मेंबर की एंट्री मिली, डायरेक्ट इलेक्शन हुए। तो हमने बात की कि इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। उसके बाद हमारा डायरेक्ट इलेक्शन टुक्स प्लेस हुए एज वी मूव हेड टू द डिस्कशन। फिर उसके बाद जो है जब डायरेक्ट इलेक्शन हुए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे, तो हमने जो है इंडिया की 10% ऑफ जी इंडिया की जो पॉपुलेशन है विल बी एबल टू गेट द वोटिंग राइट्स। फेडरल कोर्ट वेटअप इन 1937 थ्रू दी एक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो फेडरल कोर्ट है उसको सेटअप किया गया था 1937 के अंदर। और फेडरल कोर्ट क्या है, फेडरल कोर्ट मैंने आपको बता दिया, फेडरल कोर्ट वही कोर्ट है जो हमारा इनिशियली कैलकाटा के अंदर फॉर्मेशन किया गया था, जो कि फाइनली जो हमारा अब दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, और वो हमारा 1912 के अंदर शिफ्ट किया गया था। द अपील्स फ्रॉम फेडरल कोर्ट कुड बी फाइल्ड इन प्रीविल काउंसिल इन लंदन। जो काउंसिल है लंदन के अंदर, वहाँ पे जितनी भी अपील्स हैं वो फेडरल कोर्ट की वो फाइल्ड की जाती हैं। दैट्स मेंशनिंग इन दिस पॉइंट। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्मेशन करने एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक्ट रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि डिवीजन ऑफ पावर हुआ, फेडरेशन टर्म इंट्रोड्यूस हुई, डिवीजन ऑफ पावर हुआ 3 लिस्ट के बेसिस पे, फेडरल लिस्ट ऑफ सेंटर, प्रोविंशियल लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, एंड दी कंकरेंट लिस्ट होती है बोथ टर्म, यानी कि सेंटर एंड दी स्टेट्स। Apart from that is the abolition of the diarchy also takes place at the center, or we were also get the 10% of India's population got voting rights. ठीक है, so this is regarding in this video. So बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग।